Good morning, students. Today I will start the fourth chapter of history, which is the Mughal Empire, Mughal Samraj. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उन्होंने राज प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव महाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। Today, the Prime Minister of India addresses the nation of Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal empires. आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। Who were the Mughals? Who were the Mughals? मुगल कौन थे?
The Mughals were descendants of two great lines of rulers from other mother's side. They were descendants of Genghis Khan, that 1227 ruler of Mongol tribes. मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। From their father's side, they were the successors of Timur, that 1404, the ruler of Iran. तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके वो उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर, जी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। The ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार से संबंधित, और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने not least of all because their great had captured Delhi in 1398। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of
Taimur and himself take a look at feature 2, which is somewhat like a group photograph. उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 2 को देखिए तो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल सैन्य अभियान। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Farhan in 1494 when he was only 12 years old. प्रथम मुगल शासक बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक था, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodhi, at Panipat and captured Delhi and Agra. तो प्रथम मुगल शासक बाबर था और उस प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। टेबल 1 charts some of the major campaigns of the Mughals. तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। Study it carefully and see it. You can notice any long-term patterns. इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7, the Sikhs. See also chapter 8 and 10, and Mewar and Marwar. See also chapter 9. How was the Humayun's relationship with Safavid Iran?
different from Akbar's. The annexation of Golconda and Vizapur in Aurangzeb's region in hostilities in the Deccan. तो तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में, सिखों अध्याय 8 और 10 में, एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्यायों के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया? मुगल्स ट्रेडिशन एंड सक्सेशन। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the oldest son inherits his father's estate. मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। Instead, they followed the Mughal and custom of compulsory inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Follow the highlighted passage in table first and note the evidence for rebellions by Mughal princes. Which do you think? If a fairer division of inheritance, primogeniture of or compulsory? तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, और ज्येष्ठाधिकार के नियम का मतलब था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो इसके विपरीत, इसके उल्टा उत्तराधिकार में भी शहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर किए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायात?
ज्येष्ठाधिकार में केवल ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, वो पिता की गद्दी वो ही संभालता था। और सहदायद में गद्दी को या राज्य को सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था। थैंक यू।